Hello Abhinav, and thank you for joining us in this special interview series called Interview with Inspiration. Hey, Vishal, thanks a lot for having me here. I really appreciate it. Thank you. Yeah, so Abhinav Chawatiya is the founder and CEO of Zatoon Game Studio and Game Development Company since 2007, with 200 game titles and 300 plus clients all over the world. He started his career as a game artist and then went on to work as a 3D web artist, 3D animator, modeler, texture artist before he started his journey as an entrepreneur. So, thank you so much, Abhinav, for joining us on this interview. Well, it's a pleasure. Thank you. So, my first question to you is, could you please talk about your journey as an artist and as a professional and an entrepreneur? Like right from your college days, how did you get into this field, and how did it Right. all? Right. So it's a long story, right? So I started off way back in 1999 when I was doing my BSc at the time. IIM Multimedia was there. So I started doing a course for 3D animation, and slowly within like 6 months, I knew much more than what the tutor even knew, right? So slowly while doing 3D animation, I found out that this is what I wanted to do, and this is what I wanted to get into, and this is what I wanted to pursue as a career. But at that time, there were not many colleges in India, and not many colleges abroad as well. So I finished my course, right, and then I was looking at things to do, and then I came to know across that is the school called Vancouver Film School, based in Canada, right? And that's the only college offering a one-year diploma. So ours was the first course which had a one-year diploma. The rest was 6 months courses. And I don't want to spend 4 years doing a BFA. So after kind of pursuing my parents and my family that this is what I wanted to do, because they were all 1999 and 2009 and 3D animation wasn't even heard of. So I convinced them, and then finally got into Vancouver Film School. And after coming out of Vancouver Film School, in Vancouver Film School, it was a really nice learning experience with students from all across, and काफी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे. उसके बाद क्या हुआ कि I always wanted to come back to India and work. And after coming back to India, I joined a company in Bombay, which was a gaming company. So when I left Vancouver Film School, I was very clear that I wanted to become a 3D animator. But when I joined that company in Bombay, I kind of realized that maybe gaming is what my calling is. So I kind of shifted the entire industry from animation to games, and worked on my portfolio. Again, went back to Canada. I worked in a company over there where I was a 3D artist. I did some freelancing for other companies, including EA, and then got a job in Ubisoft Montreal for 1-2 years, where I worked on multiple titles. At that time, I kind of learned a lot, and I really enjoyed what I did, and it was good. But then I felt that something was missing, and I always wanted to come back to India because my family was here, my entire background was here. So in 2006, I came back to India, and in 2007, I started this company, and that's the story. And from then, we started off as a very when we started off doing everything, and then slowly we moved on to doing games only. And specifically, if you want, I can share more about the journey from 2007 till now as well, if you want me. Yeah, of course, that would be interesting. So, your journey as an entrepreneur. All right. So from 2007, when we started off, we were kind of doing a bit of everything. And when we started off, we were doing only game art for very few platforms. But then, slowly, from doing game art from a few platforms, we started making our own games. Now, in 2020, we are doing game art for all platforms. We are doing game development for PC, iOS, Android, and VR. We are working on VR training simulations, and we're also making our own games. So from doing a very minor thing, we are now kind of into a lot of different things. We are also looking very actively at VR. And it's going to, this is a very brief about the entire journey, right? Great. So, could you talk briefly about the market scenario, how it has changed, especially, after this COVID lockdown is actually lifted and things come back to normal? How do you think the gaming industry is going to change? Well, the gaming industry
during the lockdown has done pretty well because the game doesn't want to develop games quickly, you want to create games quickly. So that has changed. And the more people change, the more games they're playing. I think everyone's seen that. Right. As an industry as a whole, we haven't been touched with much affected, right? Because, we were kind of immune to it. But still, I think that there has been a kind of a slowdown in terms of work-at times. So it's kind of posted that at times we have a lot of work at times, there was a lot less work. Right. How many people do you have in your organization? We have 30 people right now. All right. And so all of them must be working from home now. Some of us are back. A lot of us are working from home right now. Okay. So how is that? Like working from home, is that better, or people if they come at office that works better for you? I think having people in office, it's a lot better because when you are doing something like art or programming, you need to have people around you to have a quick feedback. If there's something that you want to tell someone, maybe some instructions or some feedback, explaining someone on the phone is a lot harder. Also, if someone is right in front of you, you can always tell them that this is what needs to be done. Also, when you're working on a project that has multiple divisions or multiple subdivisions, right? It's always important to have people in-house where you can just give your inputs quickly, or you can just make sure that everything is on track quickly. Having people work from home is fine when maybe they are working on a single thing, but when you're working on multiple things, it's better to have people inside the office where it's easier to communicate. Yes. So मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि गेमिंग इंडस्ट्री में अलग-अलग टाइप की प्रोफाइल्स होती है, गेम आर्टिस्ट होता है, Right. गेम डिजाइन होता है, तो उसमें क्या फर्क है? और ज्यादा इंडस्ट्री में डिमांड गेम आर्टिस्ट की होती है या डिजाइनर्स की होती है या कोडिंग करने वाले लोगों की होती है? हाउ इज इट बेस्ड? Okay, so जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है वो काफी लार्ज है, इट्स अ मैसिव इंडस्ट्री. उसके अंदर डिविजन्स काफी है. उसके अंदर आपके पास डेवलपर्स है, डेवलपर्स के अंदर भी काफी जो है सब डिविजन्स है, काफी लोग हैं. आर्टिस्ट उसके अंदर भी लोग हैं, एनिमेटर्स के अंदर भी लोग हैं. अगर पूरा देखने जाए तो जो गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर आप अगर आर्टिस्ट ले लो तो आर्टिस्ट के अंदर 3D मॉडल्स आते हैं, फिर उसके अंदर 3D कैरेक्टर मॉडल्स आते हैं, 3D प्रॉप मॉडल्स आते हैं, एनिमेटर्स आते हैं, जो टेक्सचर आर्टिस्ट आते हैं, फिर टेक्निकल आर्टिस्ट आते हैं, फिर आपके जो UI आर्टिस्ट आते हैं, 2D आर्टिस्ट आते हैं, वो ये आर्टिस्ट का हो गया. एनिमेटर्स आते हैं. फिर गेम डेवलपमेंट के अंदर जो डेवलपर्स आते हैं वो भी अलग आते हैं. कोई गेम प्ले का डेवलपर आता है, कोई UI का डेवलपर आता है. देयर इज पीपल हु डू लेवल्स, जो लेवल डिजाइन करते हैं. फिर लोग आते हैं कि जो गेम डिजाइन करते हैं. फिर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आते हैं. तो बहुत 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 बड़ी मैसिव इंडस्ट्री है ये, और काफी रोल्स है. अब ये हर एक स्टूडियो जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग टाइप से काम करता है. अगर कोई बड़ा स्टूडियो होगा उसके अंदर सब रोल्स जो है वो डिफाइंड होंगे. कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का रोल अलग होगा, 2D आर्टिस्ट का अलग होगा, 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट का अलग होगा, 3D टेक्सचर आर्टिस्ट का अलग होगा, एनिमेटर का अलग होगा. एनिमेटर वाला जो है वो एनिमेशन नहीं करेगा, रिगिंग नहीं करेगा. राइट. QA वाला अलग होगा. उसके अंदर जो टेक्निकल आर्टिस्ट है, लीड डेवलपर है या लीड आर्टिस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, लीड अपना वो आर्ट डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर, अलग सबके हिसाब से अलग अलग होगा. हमारे वहाँ जो वी हैव मोर ऑफ अ काइंड ऑफ नेचुरल थिंग के जो आर्टिस्ट आता है, ही शुड बी एबल टू वर्क ऑन बोथ कैरेक्टर्स एंड प्रॉप्स. उसको मॉडलिंग भी आना चाहिए, टेक्सचर भी आना चाहिए. राइट. जो डेवलपर आता है उसको बेसिक जो गेम प्ले लॉजिक है उसको आना चाहिए. लेकिन द बिगर द कंपनी इज, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें रोल्स ज्यादा डिफाइन होंगे. राइट. अगर आप EA में जाओगे तो EA के अंदर जो बंदा मे बी फीफा का जो हेड बनाता है वो हेड ही बनाएगा. राइट. मॉडल का यूज करेगा. तो हर एक जो रोल्स है वो स्टूडियोज के हिसाब से अलग अलग होते हैं. कोई जगह पे कोई आर्टिस्ट भी है जो प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई जगह पे प्रोग्रामिंग वाले भी है जो आर्ट का थोड़ा काम हेल्प करते हैं. राइट. गेम डिजाइनर्स है कि जो लेवल डिजाइन में भी हेल्प. कोई जगह पे हर एक चीज लेवल डिजाइन के अंदर भी एनवायरनमेंट डिजाइन है या फिर आपका जो बैकग्राउंड्स है या कोई एरिया, वो सब अलग अलग डिजाइन करने वाले लोग होते हैं. अब आपका क्वेश्चन है कि किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो डेवलपर्स हमेशा ज्यादा डिमांड में रहेंगे अगर अच्छे हैं तो. आर्टिस्ट के अंदर अगर आर्टिस्ट है तो अगर एनिमेशन, अभी गेम की जो एनिमेशन है वो मूवी और फिल्म से काफी अलग है.
गेम के अंदर आपको शॉर्ट एनिमेशंस चाहिए, राइट? और ऐसे मोस्टली एक्शन के होते हैं जो एनिमेशन होते हैं, वो इमोशन नहीं आता उतना ज्यादा, जैसे किलिंग है या शॉर्ट से मारेगा या रनिंग है, वॉकिंग है, वो सब एनिमेशन है। आपका जो रूटीन जो टीवी पे या फिल्म में आता है पूरा इमोशन के साथ, वो सब गेम में उतना नहीं आता ना। 3D मॉडलर अगर अच्छा होगा तो नॉर्मली आई सजेस्ट कि जो कोई बंदा या whoever the candidates, whether उनको जो कुछ करना, they should always have an additional skill। अगर 3D मॉडलिंग का नॉलेज है तो टेक्सचर का नॉलेज भी होना चाहिए, अगर एनिमेशन का नॉलेज है तो रिगिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतनी ज्यादा उनकी डिमांड होगी। हमारे वहाँ लिस्ट ऐसे का लोग ज्यादा भी रोल आए है। कि जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया फिर भी उनका काम अच्छा है। ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने पूरा फॉर्मल एजुकेशन लिया है, उनका काम भी अच्छा है। तो आई थिंक हर एक का टैलेंट अलग अलग होता है। एंड और मेरे लिए बोल हाँ जी बोलिए। how important do you think is for a game artist or a game designer to know about coding development? नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट नो अबाउट कोडिंग, बट दे शुड नो। अगर सपोज के गेम इंजन है, अनरियल गेम इंजन है या दूसरा कोई गेम इंजन है, उसको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि अगर मैं ये अपना एसेट जो है वो इंजन में लेके जाता हूँ तो कैसा दिखने वाला है, कैसा फील होने वाला है, उसको उसमें लाइटिंग कैसे आएगी। अगर उसको नॉलेज है, देखिए एडिशनल नॉलेज ऑलवेज हेल्प्स, राइट? इफ यू से कि मुझे मॉडलिंग और टेक्सचर के साथ इस इंजन में भी एसेट इंपोर्ट का नॉलेज है, मैं यूनिटी 3D के अंदर अपना एसेट ले जाके उसको रख सकता हूँ, उसका स्केल कर सकता हूँ, उसको लाइटिंग दे सकता हूँ, उसको शेडर दे सकता हूँ। तो बेसिकली आप एक इंजन रेडी एसेट क्रिएट कर सकते हो। वो हमेशा जो पर्सन जिसको सिर्फ एक ही नॉलेज उससे बेटर रहेगा, राइट? सो हमारे वहाँ ऐसे लोग भी है कि जो डेवलपर्स है, जो आर्ट का काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट भी है जिनको थोड़ा डेवलपमेंट या इंजन का भी है नॉलेज है। एडिशनल नॉलेज ऑलवेज हेल्प्स, राइट? बिल्कुल, जरूर। आपकी कंपनी तो अब कई सालों से गेमिंग में है, तो ज्यादा राइट। मतलब अगर हम बात करें कि कितने टाइप के गेम्स बनते हैं, और मतलब इट कुड बी, मतलब अगर कैटेगराइज करना है तो क्या बेसिस पे कैटेगराइज करें, उसका ऑडियंस कितना बड़ा छोटा होता है उसके हिसाब से किया जाता है गेम्स को कैटेगराइज, या उसकी मार्केटिंग कैसे होती है उसके हिसाब से किया जाता है, कैसे करते हैं कैटेगराइज? ओके, राइट। सो हमने जब स्टार्ट किया 2007 में, तब 2007 में ना एप्पल था, ना एंड्रॉइड था, ना वीआर। इट वाज जस्ट पीसी एंड कंसोल, राइट? ऑनलाइन गेम्स जो है वो काफी डेवलप हॉट था। एप्पल आया 2007-8 में, उसके बाद आया फेसबुक गेम्स, आया फार्मविल, वो सब। उसके बाद एंड्रॉइड आया, उसके बाद आपका जो ऐप गेम्स है वो सब आई। उसके बाद 2017-18 में वीआर का आया। तो ये इंडस्ट्री है बहुत ही डायनामिक है, राइट? और इस डायनामिक इंडस्ट्री में हर साल या हर 2 साल में कुछ नया आता है। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें मालूम भी नहीं था कि एप्पल जैसा कुछ या वीआर जैसा कुछ आएगा, राइट? और जब आया तब इतना बड़ा आया, वो भी आइडिया नहीं था। हर एक वेव आता है, फेसबुक गेम्स का एक वेव था, वीआर का एक वेव आएगा, आईफोन का जो गेम्स उसका एक वेव था, जो एंड्रॉइड पे जब गेम्स चली या पीसी पे जब गेम्स चली उसका एक वेव था। सो पीसी पे ऑफ कोर्स अभी भी इट्स स्टिल गोइंग ऑन। सो उसका एक, अब हर एक जो ऑडियंस है, जैसे फिल्म में होता है कि एक जॉनर होता है, कॉमेडी होता है, थ्रिलर होता है, एक्शन होता है, सस्पेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री टाइप होता है, वैसे गेम में भी काफी जॉनर्स है। यू हैव हार्डकोर गेम्स, यू हैव कैजुअल गेम्स, यू हैव सीरियस गेम्स, यू हैव एक्शन गेम्स, एडवेंचर गेम्स, यू हैव पजल गेम्स, स्पोर्ट गेम्स। सो बहुत सारे जॉनर्स है ना। प्रॉब्ली हम वो गेम बनाते हैं, हम कैजुअल गेम्स थोड़ी कम बनाते हैं, पजल और स्पोर्ट्स पे तो हम जाते ही नहीं है। हमारा मोस्टली एक्शन और कैजुअल के बीच में रहता है, और हम चेक करते हैं कि उस पर ऑडियंस कितना है, वो अगर ये ऑडियंस है ये गेम एक्सेप्ट होगी नहीं होगी वो सब। सो थोड़ा रिसर्च भी उस पर करते हैं। हमने जब फर्स्ट गेम बनाई हमारी 2010 में, तो वो उस हिसाब से बना था कि प्रिंस ऑफ पर्शिया मीट्स मारियो बीट्स इंडिया वैसे बनाया, राइट? फिर हमने जो 2015 में गेम निकाली, वो उस टाइम पे सबवे सर्फर्स हॉट था, तो उस पर पूरा पेट्स थीम पे हमने गेम निकाली थी। स्नाइपर गेम्स हॉट थी, लेकिन वीआर पे भी स्नाइपर गेम नहीं थी, तो हमने वीआर पे स्नाइपर गेम निकाला। So we try to figure out कि what the audience likes, which platform is there कि जहाँ पे अभी उतना crowded नहीं है। और एक चीज ये है कि वीडियो गेम मार्केट जो है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। It takes a lot of money to make games, right? Especially if you're a studio, right?
a single handed person जो है मे बी, और अभी क्या है कि the quality is pretty high, and Apple और Android पे इतने apps आ गए हैं कि to discover अपना app या game को discover करना भी बहुत मुश्किल हो गया. So the more the people are there, डेवलपमेंट के साथ साथ अभी मार्केटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, काफी ध्यान रखना पड़ता है. मैटर ऑफ फैक्ट, लाइक डेवलपमेंट वाज अर्लियर 70% मार्केटिंग वाज मे बी हार्डली 20-30%. नाउ डेवलपमेंट को खुद अपने हिसाब से 30-40% तो है, मार्केटिंग पे भी उतना वी हैव टू टेक केयर कि मार्केटिंग पे भी हम थोड़ा ध्यान दें. तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में, अगर दुनिया का मार्केट हम देखें तो ज्यादा डिमांड में गेम्स जो हैं वो क्या वो शूटिंग और स्नाइपर इस तरह के, क्योंकि जो सबसे बड़े गेम्स के नाम आते हैं वो पबजी आता है, उसके पहले भी वो कुछ गेम्स इस तरह से, काउंटर स्ट्राइक वगैरह इस तरह के गेम्स चलते थे. राइट. हम ये कह सकते हैं कि दुनिया फाइटिंग गेम्स से ऑब्सेस्ड है मार्केट? नहीं, I would not say कि फाइटिंग गेम्स ऑब्सेस्ड है. The thing is that अगर आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ले लो, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो आई थिंक दैट वो जब निकला तब they made like close to $1 billion, billion with a B, in like 3 or 4 days, right? उन्होंने $1 billion 3 or 4 days में कमाया, बट उनको गेम बनाने भी 4 साल लगे, उनका मार्केटिंग बजट भी 100 से 150 बिलियन के आसपास का था. So ऐसा नहीं है कि people only like those games. It's very hard to define what games people like. So one of the top selling games जो है वो जो Mario based games है, right? वो अभी भी काफी hot है. तो वो fighting games तो है नहीं. Okay, they are more casual games. So audience के हिसाब से, हर एक country के हिसाब से, audience के हिसाब से games अलग अलग है. There is no way to say कि भी Mario games सबसे बेस्ट सेलिंग है, या फाइटिंग गेम सबसे बेस्ट सेलिंग है, या एक्शन गेम सबसे बेस्ट सेलिंग है. अभी सीरियस गेम्स भी काफी आ रही है. जितने लोग पबजी खेल रहे उतने लोग भी शायद बोर्ड गेम्स भी खेल रहे हैं, राइट? ऐसा भी. यस, ग्रेट, जरूर. एक और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एआर और वीआर का क्या रोल है गेमिंग इंडस्ट्री में आगे चल के? एआर की गेम्स काफी आ गई है. देखिए, एआर और वीआर दोनों अलग इंडस्ट्रीज है. एआर जो है आपका फोन के थ्रू या जो है वो ग्लासेस के थ्रू जो है वो आता है, राइट? वीआर इज अ टोटल हेडसेट, सो दोनों इंडस्ट्रीज अलग है. They are completely different. AR is much more suitable for industries and enterprises, while VR is also suitable for enterprises and industries, but is also suitable for games. Games के लिए भी काफी अच्छा है. अभी VR के अंदर गेम इंडस्ट्री काफी छोटी है, like उतना नहीं एक्सपांड हुआ है, but I think फ्यूचर में जाने में काफी एक्सपांड होगा ऐसा लग रहा है, right? So VR पे भी अगर आप देखें तो काफी गेम्स है. Even there are games that have made a really good money, right? एंड VR पे प्लस पॉइंट क्या है कि ऑडियंस बहुत नीश है, क्योंकि VR का जो हेडसेट है वो कुछ $400 का हेडसेट आता है उसका, प्लस आपके लिए बहुत हाई पीसी चाहिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पीसी चाहिए, तो उसके लिए बहुत नीश ऑडियंस है. लेकिन जो लोग हैं वो खेलते हैं, जो ऑडियंस उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है. आपके अभी और फ्यूचर प्लान्स क्या है? हाउ आर यू ट्राइंग टू एक्सपैंड नाउ? हम लोग अभी हमारी जो सेकंड VR गेम उस पे काम कर रहे हैं, और हम inside the team also we are kind of बात कर रहे हैं कि जो अलग जो गेम कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम पहले हमारा फोकस था VR, but we also focusing on VR PC and iOS Android as well. PC पे इसके लिए PC का मार्केट बहुत बड़ा है, और ऐसा मार्केट है कि उसमें अभी भी थोड़ा नीश आ सकता है. On that's on the game side front. सर्विसेज के फ्रंट पे तो हमारे जो क्लाइंट्स उनके साथ तो हमारा काम ऑलमोस्ट इट्स बीन गोइंग ऑन. सो उसमें कुछ नया है नहीं. आई मीन वी कीप ऑन वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सो दैट्स व्हाट इट इज ऑन दैट साइड. लेकिन गेम के साइड पे हमारा जो सेकंड VR गेम है, फिर हमारे पास और 2-3 आइडियाज है व्हिच वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स व्हिच वी फील दैट आर यूनिक. और अब आप नाउ यू नो हाउ द इंडियन एनिमेशन एजुकेशन सेक्टर इज. तो जो बच्चे डिग्री करके आते हैं या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करके आते हैं, उन्होंने अगर आपकी लाइन में आना है, उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो उनको ये डिसाइड करना है कि उनको करना क्या है, राइट? अगर हमारे पास किसी का शोवीर आता है जिसमें मॉडलिंग भी है,
एनिमेशन भी है, एनवायरनमेंट्स भी है, सब कुछ है, और उसमें से एक भी ठिकाने भी नहीं का है, तो वी आर इवन कंफ्यूज कि इसका क्या है. So it's better to focus on one thing. अगर आपका कैरेक्टर पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कैरेक्टर पे फोकस करें, आपका प्रॉप्स पे स्ट्रॉन्ग है आप प्रॉप्स पे फोकस करें, आपका टेक्सचरिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप टेक्सचर पेंटर में टेक्सचरिंग पे फोकस करें, आपका एनिमेशन स्ट्रॉन्ग है तो एनिमेशन के लिए फोकस करें. अब जो जो लोग एनिमेशन के लिए हमको देते हैं वो पूरा शोविल बना के हमको देते हैं, उसका हमें इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि हम मूवीज में नहीं है, हम ना ही हम मूवीज में है, ना ही हम फिल्म में है, ना ही हम टीवी में, बिकॉज वी आर नॉट अ टीवी और एनिमेशन स्टूडियो, वी हैव अ गेम स्टूडियो. गेम्स के लिए जो एनिमेशंस आते हैं वो शॉर्ट एनिमेशंस आते हैं और एक्शन और मूवमेंट के एनिमेशंस आते हैं, राइट. सो अलग अलग कैरेक्टर को एनिमेशंस दे के वो ऑनलाइन दे कैन सर्च गेम एनिमेशंस कैसे होते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे. आप पूरा 2 मिनट का रील देखने का और समझने का तो गेम्स के अंदर आएगा ही नहीं. गेम्स के लिए बहुत स्पेसिफिक शोविल उनको देना पड़ेगा. हमारे वहाँ काफी लोग आते हैं जिनका आर्किटेक्चर का काम होता है या जिनका ग्राफिक डिजाइन का काम होता है, that is completely away from what you are doing, right? So are you देखने का saying भी कोई point है. So are you saying कि जिनको एनिमेशन करना है, क्या जो उस तरह से गेम डिजाइनिंग में आ रहे हैं या गेम आर्ट में, उनका रिगिंग का स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? नहीं, रिगिंग का स्किल नहीं होना चाहिए. मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका पोर्टफोलियो गेमिंग के हिसाब से क्रिएट करना चाहिए, राइट. देखिए रिगिंग तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपका हो जाएगा. आप एनिमेशन आप देखेगा, अगर सपोज कि आपका वॉकिंग है या रनिंग है या स्वॉर्ड फाइटिंग है या गन रीलोड एनिमेशन है या 2 कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं, सो बेसिकली आपको गेम में उसको डालना है, उसके पीछे स्टोरी तो आएगी नहीं. अब गेम के अंदर आगे भी फील्ड है, वो है वो सिनेमैटिक का फील्ड है. सिनेमैटिक्स जो गेम के ट्रेलर देखते हो या कट सीन्स देखते हो वो है. अब वो इंडस्ट्री पूरी अलग है, तो हम उसमें तो है नहीं. और इंडिया में भी आई थिंक काफी कम स्टूडियोज है जो सिनेमैटिक्स पे काम कर रहे हैं. तो सिनेमैटिक्स का भी वो थोड़ा मूवी पे आता है उनका. सिनेमैटिक्स का अलग है और गेम का अलग है एनिमेशन. तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि उनको कहना क्या, उनको जाना कहाँ पे. We would prefer to see maybe a single character or single asset well done, other than seeing 10 different assets or seeing a 2-minute animation reel compared to maybe a 10-second reel or 20-second reel which shows promise. Exactly. Right? आप कोई बोलेगा कि भाई मुझे एनिमेशन नहीं आता या फिर मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं आता, वो सॉफ्टवेयर नहीं आता. तो हमारे वहाँ तो वी हैव लिस्ट इतने सॉफ्टवेयर तो आपको आने ही चाहिए. अब आपको नहीं आता तो क्या आप सीख के आ सकते हो? That's again a question that we have, right? Great. Okay, right. So also, yeah, बोलिए, if you're saying something. Yeah, right. So अब एक ये है कि अगर आप गेम्स के लिए आना चाहते हो तो अपने एनिमेशन गेम इंजन्स जो है, फ्री गेम इंजन्स भी है, अनरियल है, यूनिटी 3D गेम इंजन है. उन सब गेम इंजन्स में अगर आप अपने खुद के एनिमेशंस डाल के एक बार देख तो आपको खुद को आइडिया आएगा कि वो कैसे प्ले कर रहे हैं, राइट. एंड ऑल्सो बाहर अभी मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, उसको भी देख के आप कुछ बना सकते हो, तो आपको आइडिया. आई थिंक फॉर अ स्टूडेंट राइट नाउ दे हैव सो मच इंफॉर्मेशन that they can reference their work very clearly, right? Also एक क्या बोलते हैं, एक सिंगल पोर्टफोलियो को सब जगह पे देने से बेटर है कि थोड़ा टेलर मेड करके पोर्टफोलियो बनाए और अलग अलग कंपनीज में दे. आई एम श्योर जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो एनिमेशन के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे, टीवी के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे, फिल्म्स के एनिमेशन के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे. तो वो सब एनिमेशंस अगर हम नहीं किसी भी गेम स्टूडियो में आप सबमिट करेंगे तो वो थोड़ा अलग दिखेगा. अगर थोड़ा टेलर मेड करें तो इवन आज कोई टेलर मेड हमको देता है तो हमको भी आइडिया आता है, क्योंकि दिस गाय हैज वर्क टू मेक श्योर हिज पोर्टफोलियो मैचेस आवर वेबसाइट पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट्स, राइट. इवन वी फील अगर कोई कोई पोर्टफोलियो उसमें आर्किटेक्चर का भी काम है, उसमें ग्राफिक डिजाइन का भी काम है, उसमें 2-3 कैरेक्टर भी ऐसे कैसे डाल दिए हैं, सो दैट मेक्स नो सेंस. ऑल्सो देखिए हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमें एफर्ट देख के एनिमेशन देख के आइडिया आ सकता है कि किसने कितना काम किया. अगर बाहर से कोई उठा के डाल देता है अंदर तो वो भी आइडिया आ ही जाता है, राइट. Exactly. Because it takes like 1 minute or 2 minutes to find out. क्योंकि एक पोर्टफोलियो में ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि सब काम अच्छा हो, एक काम अच्छा हो बाकी का काम एकदम उससे थोड़ा एवरेज हो, राइट. सो वो देख के आइडिया आ जाता है. तो I think it takes 10 or 20 seconds to see it, honestly, right? Yeah.
So thank you so much, Abhinav, for taking out the time from your schedule for this interview. It was a really useful Sure, conversation. Sure. I hope कि आपका स्टूडेंट को कुछ मैंने जो शेयर किया उसमें से कुछ काम में आएगा. अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो please feel free. I can surely share it. Right? Yes, definitely. So thank you once again.